My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing Wilson's theorem to find out remainders. Start करते हैं session को. So there was a person, Sir John Wilson, and he gave a theorem, Wilson's theorem. And I quote, the theorem states, given a prime number p minus 1 factorial plus 1 is a multiple of p. So if there is a prime number p minus 1 factorial plus 1, this is a multiple of p. So p minus 1 factorial plus 1 is equal to p का sum multiple. So that implies that if we divide the whole expression by p, so p minus 1 factorial plus 1 by p, remainder will be equal to 0. Or to say it more precisely, p minus 1 factorial divided by p, remainder will be equal to minus 1. Isn't it so? If we divide p minus 1 factorial by p, remainder will be equal to minus 1. So if we add 1, remainder will be 0. क्या ही क्लियर है? ठीक है. And if remainder is equal to minus 1, तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस 1 है. पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर विल बी माइनस 1 प्लस p, which will be p minus 1. So now let us say the question is कि what will be the remainder if we divide p minus 2 factorial by p. और ये तो हम कर चुके हैं. कैसे करेंगे इसको? मल्टीप्लाई दिस बाई p minus 1. Let us assume कि remainder will be equal to r. Multiply this by p minus 1. तो p minus 2 factorial multiplied by p minus 1 divided by p remainder. This is now p minus 1 factorial by p, और हमें पता है p minus 1 factorial को p से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा minus 1. और इवन बेटर p minus 1 पॉजिटिव रिमाइंडर लिख लेते हैं. ठीक है. और पॉजिटिव रिमाइंडर क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज p minus 1 तो हमारा ये रहेगा, और p minus 2 को फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर r हमने एज्यूम किया, लेट अस से r रिमाइंडर आएगा. सो रिमाइंडर हमारा हो गया p minus 1 into r. ठीक है. p minus 1 into r is the remainder which is equal to p minus 1, and hence r will be equal to 1. Remainder will be equal to 1 when we are dividing p minus 2 factorial by p. So another conclusion from the equation, from the theorem, that p minus 2 factorial divided by p, remainder is equal to 1. Okay. p minus 1 factorial divided by p, remainder was equal to minus 1. p minus 2 factorial divided by p, remainder is equal to 1. अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड. क्या है? तो क्लियर है? ठीक है. बट बिफोर स्टेटिंग एनी एग्जाम्पल्स, एक दो डिफरेंस समझ लें कि इन सच केसेस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग. द डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टोरियल टर्म. डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टोरियल टर्म. डिवाइजर हमारा सिंपल एक नंबर है p विच इज ग्रेटर देन p minus 1 और प्राइम है. फॉर एग्जाम्पल, if let us say we are saying 16 factorial divided by 17 factorial, this is a different question, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर हमारा 17 factorial है. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये हमारा सेम क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. 16 factorial by 17 factorial, what will be the remainder? क्या रिमाइंडर होगा? 16 factorial is less than 17 factorial, and if dividend is less than the divisor, तो पूरा का पूरा डिविडेंड ही हमारा रिमाइंडर होगा, यानी रिमाइंडर विल बी 16 factorial. Same as when we are dividing 16 by 17, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 16 आ जाता है. ठीक है. अगर ऑपोजिट करें 17 factorial डिवाइडेड बाय 16 factorial, तब रिमाइंडर क्या होगा? अब यहां पे कंपेयर नहीं कर सकते. दिस इज नॉट इक्वल टू सेइंग 17 by 16 रिमाइंडर क्या होगा? इन दैट केस रिमाइंडर इज 1. बट यहां पे क्या है? 17 factorial इंक्लूड्स 16 factorial. दिस इज बेसिकली 17 into 16 factorial. So it is a multiple of 16 factorial. That is why remainder will be equal to 0. रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये दोनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट है, जहां पे रिमाइंडर बहुत इजीली निकल आता है. सो व्हेन डिवाइजर इज अ फैक्टोरियल, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. विल्सन्स थ्योरम स्टेट्स व्हेन द डिवाइजर इज अ प्राइम नंबर. ओके. इज दैट क्लियर? दैट डिफरेंस मस्ट बी क्लियर, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा और बाद में गलतियां करोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. So if we have 21 factorial
डिवाइडेड बाई 23, व्हाट विल बी द रिमाइंडर का वैल्यू? क्या रिमाइंडर आ जाएगा? p माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p रिमाइंडर इज इक्वल टू +1. सो रिमाइंडर इन दिस केस 23 इज प्राइम. सबसे पहली चीज 23 मस्ट बी प्राइम, तभी अप्लाई होगा. दिस मस्ट बी प्राइम. ठीक है, तो 23 इज प्राइम, 21 इज 23 माइनस 2. सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू +1. रिमाइंडर हमारा हो जाएगा +1. ओके, अनदर एग्जांपल 39 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 41, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू +1. 40 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 41, रिमाइंडर क्या आएगा? 40 फैक्टोरियल इज जस्ट 1, 40 इज जस्ट 1 लेस देन 41, सो रिमाइंडर विल बी -1 और 41 -1 विच इज इक्वल टू 40. सो -1 रिमाइंडर कह दोगे या 40 कह दोगे, बात एक ही है. क्लियर? सिमिलरली 46 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 47, रिमाइंडर विल बी -1 और इट विल बी -1 प्लस 47 विच इज 46. ओके, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं. 46 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 47, रिमाइंडर इज -1. 45 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 47, रिमाइंडर इज +1. बट व्हाट इफ वी आर डिवाइडिंग 44 फैक्टोरियल बाई 47? देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब ये तो हमें पता नहीं है, बट वी नो दैट 45 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 47 इज गिविंग अस रिमाइंडर इक्वल टू +1. दैट इज गिविंग अस रिमाइंडर इक्वल टू +1. तो क्या कर सकते हैं? और 46 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 47, दैट इज गिविंग अस रिमाइंडर इक्वल टू -1 और 46. सो व्हाट वी कैन डू, मल्टीप्लाई दिस बाई 45, दैट इज वन अप्रोच. ठीक है, सो दिस विल बी 44 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 47. क्या आएगा रिमाइंडर? क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी, नाउ दिस इज 45 फैक्टोरियल बाई 47, तो रिमाइंडर विल बी +1. ओके, क्लियर है? और 44 फैक्टोरियल लेटर से हमें रिमाइंडर r दे रहा है. r रिमाइंडर यहां से मिलेगा. 45 इज 47 माइनस 2, तो -2 विल बी द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर हमारा हो गया -2r एंड दैट इज इक्वल टू +1. दैट इज इक्वल टू +1. एंड इफ -2r इज इक्वल टू +1, तो वी नो रिमाइंडर हमारा -1/2 तो नहीं होगा, फ्रैक्शन तो नहीं होगा. तो उसके केस में क्या करेंगे? दिस मस्ट बी सम मल्टीपल ऑफ 47 +1. सम मल्टीपल ऑफ 47 +1. और क्योंकि -2 क्या है हमारा, इवन बना रहा है, तो बस k इक्वल टू 1 पुट कर दो, उसी पे सॉल्यूशन में मिल जाएगा. k इक्वल टू 1 पे क्या सॉल्यूशन आएगा? -2r विल बी इक्वल टू 48. सो r विल बी इक्वल टू -24. एंड सिंस वी आर डिवाइडिंग बाय 47, तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए ऐड 47, तो आंसर विल बी 23. 23 विल बी आवर आंसर. ठीक है, और सेकंड अप्रोच कुड हैव बीन कि हम मल्टीप्लाई करते 45 इंटू 46 से, because then this would have been 44 factorial into 45 into 46 divided by 47, basically 46 factorial by 47. so remainder will be -1. -1 remainder होगा और this will be 47 -1. 47 -1. 45 gives us remainder -2. 46 gives us remainder -1. 44 factorial हमें remainder दे रहा है r. तो बेसिकली इक्वेशन हमारा बन गया r into -2 into -1. तो 2r is equal to 47 -1 46. So r straight away comes out to be 23. ठीक है, जस्ट इन केस अगर हमारा नंबर ये डिवाइड नहीं होता, यहां पे तो 2 है, 2 से हमेशा ही डिवाइड होगा, बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी इवन नंबर. अगर 47 हमारा प्राइम है, तो 47 -1 विल ऑलवेज बी इवन नंबर. दैट इज वाई हमने 44 फैक्टर में 45 इंटू 46 मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहां से हमें डायरेक्टली रिमाइंडर का वैल्यू मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग के. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इज दिस क्लियर? रिमाइंडर विल बी इक्वल 23. एक और एग्जांपल लेते हैं. फोर्टीन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17, what will be our remainder? Let us say remainder will be equal to r. So multiply by 15 into 16, make it 16 factorial. So this will be 14 factorial into 15 into 16 divided by 17, and we need to find out remainder. 15 is giving us remainder -1, 16 is giving us remainder -2, और 14 factorial दे रहा remainder r.
और ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ रहा है 16 फैक्टोरियल बाई 17, रिमाइंडर वैल्यू -1 और बेसिकली 17 -1. So r into -1 into -2, 2r is equal to 16 and hence r will be equal to 8. Remainder in this case will be equal to 8. Okay, remainder आ रहा है हमारा 8. वन मोर एग्जाम्पल और उसके बाद में फिर पैटर्न देखते हैं. पैटर्न क्या बन रहा है हमारा हर बार. 68 फैक्टोरियल बाई 71 क्या आएगा रिमाइंडर. लेट अस से रिमाइंडर विल बी इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय 69 into 70 to make it 70 factorial. So this becomes 68 factorial into 69 into 70 divided by 71 and the remainder is -1 or basically 71 -1. 69 is giving us remainder -2, 70 is giving us remainder -1, 68 factorial दे रहा है हमें remainder r. तो r multiplied by -2 multiplied by -1 तो 2r is equal to 71 -1 70. So r will be equal to 35. r will be equal to 35. क्या है क्लियर है. ठीक है, अब पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. व्हेन वी डिवाइडेड 44 फैक्टोरियल बाय 47, 44 फैक्टोरियल वाज 47 माइनस 3, रिमाइंडर क्या है हमारा 23 आया है. और 23 क्या है 23 इज 47 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 आ रहा था हर एक केस में हमारा. देखो हर एक केस में 2 आ रही तो आ रहा है वैल्यू व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय नेक्स्ट 2 वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर तो -1 और -2 ही आ रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर 2 बन जा रहे हैं. सो दैट इज वाई दिस इज बेसिकली 47 -1 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर हमारा. In this case, this is equal to r is equal to 17 minus 1 divided by 2. In this case, r is equal to 35 minus 1 divided by 2. So that implies if we are dividing p minus 3 factorial by p, remainder will be equal to p minus 1 divided by 2. Most important that p is a prime number. p must be prime, तभी अप्लाई करेगा. प्राइम होगा तभी अप्लाई करेगा. ठीक है. So if p is prime, p minus 3 factorial divided by p will give us remainder equal to p minus 1 by 2. Okay, clear है. Basically, let us say that is giving us remainder equal to r. Multiply this by p minus 2 into p minus 1. Okay, so this becomes p minus 3 factorial into p minus 2 into p minus 1 divided by p remainder. And remainder will be equal to, in this case क्योंकि this is p minus 1 factorial divided by p, remainder will be -1 और basically p minus 1 पॉजिटिव रिमाइंडर. p minus 2 को p से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा हमारा -2. p minus 1 डिवाइड बाई p रिमाइंडर विल बी -1. p minus 3 factorial हमने एज्यूम किया है रिमाइंडर r है, तो r into -2 into -1 2r is equal to p minus 1 and hence r is equal to p minus 1 by 2. That is the whole concept, whole proof of this generalization. क्या ये पार्ट क्लियर है. ओके ठीक है. सो नाउ थिंग्स आर वेरी इजी. 40 फैक्टोरियल इफ वी डिवाइड बाय 43, व्हाट विल द रिमाइंडर. रिमाइंडर विल बी 43 minus 1 divided by 2. फर्स्ट थिंग 43 प्राइम है. सेकेंड थिंग 40 is 43 minus 3, so this must be 43 minus 1 by 2. 68 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 71, रिमाइंडर क्या आएगा 71 इज अ प्राइम एंड 68 इज 71 माइनस 3, सो रिमाइंडर विल बी 71 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो 70 बाई 2 35 आ जाएगा. तो इस केस में आया था 42 बाई 2 21 आया था. ओके क्लियर, कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब जब बातें समझ में आ गई हैं तो फटाक से आंसर करो. 75 फैक्टोरियल बाई 77 क्या आंसर आएगा. क्या आंसर आएगा. एंड इफ यू आंसर्ड +1 देन कुडोज टू यू. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज 77 दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये तो कॉम्पोजिट है. 77 इज बेसिकली 11 into 7. 11 into 7. So we are dividing 75 factorial by 11 into 7. तो क्या आएगा रिमाइंडर. 75 factorial contains 11 and 7. Basically this is 1 into 2 into 3 into 4 into still 7 into 11 into so on. सारे के सारे नंबर्स रहेंगे. 7 और 11 भी है बीच में ही आएगा. तो इफ इट इज रेज़्ड बाय 7 एज वेल एज 11 तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा. सो अगर कॉम्पोजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हो
वो तो 0 आ रहा है आंसर क्लियरली, बिकॉज 11 एंड 7 बोथ का मल्टीपल है हमारा 75 फैक्टोरियल, इजंट इट सो, है कि नहीं? ठीक है, 1006 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1007 क्या होगा रिमाइंडर? नाउ 1007 लुक्स लाइक अ प्राइम नंबर बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। लगता तो है प्राइम, शक्ल से प्राइम लग रहा है, बट प्राइम है नहीं। ठीक है, प्राइम है नहीं। 1007 इज अ मल्टीपल ऑफ 19, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 19। 1001 हमारा मल्टीपल होता है 7, 11, 13 का 1003 होता है, 17 का 1007 हमारा 19 का मल्टीपल होता है, तो दिस इज 19 इंटू 53, 19 इंटू 53। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 1006 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 19 इंटू 53, रिमाइंडर क्या होगा? तो 1006 फैक्टोरियल कंटेन्स मेनी मल्टीपल्स ऑफ 19 एंड मेनी मल्टीपल्स ऑफ 53, तो रिमाइंडर विल क्लियरली बी 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है बात? सिमिलरली जस्ट इन केस क्वेश्चन आस्क्ड 2020 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2023, रिमाइंडर क्या होगा? अगेन शक्ल से लग रहा है प्राइम, बट शक्ल पे मत जाओ, शक्ल तो भूली है, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2023 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, देखो 3 का मल्टीपल तो नहीं है, 5 का हो नहीं सकता, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 2100 माइनस 77 है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 इंटू क्या वैल्यू आएगा? 7 2 जार 14, फिर आएगा 8 आएगा, 7 इंटू 289, और 289 यानी कि 17 का स्क्वायर है, सो दिस इज 7 इंटू 17 स्क्वायर, तो 2020 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 इंटू 17 स्क्वायर क्या आएगा रिमाइंडर? 17 के मल्टीपल्स है यहाँ पे 2020 फैक्टोरियल में, भाई 17 भी है, 34 भी है, 51 भी है, बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली 17 स्क्वायर से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, आंसर विल बी 0। दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2023। क्लियर है? ओके, क्या बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So now tell me 97 factorial divided by 101, what will be the remainder? Now 101 is a prime number, this is a prime number. भाई 98 फैक्टोरियल पूछा तो इजीली आंसर कर देते हैं हम, 98 फैक्टोरियल में तो इजीली आंसर हो जाता है, 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 101, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी 101 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 50, 50 हो जाएगा, 101 माइनस 1 बाई 2 50 हो जाएगा, बट क्वेश्चन पूछ रहा है 97 फैक्टोरियल के लिए, 99 फैक्टोरियल पूछा होता तब भी इजीली आंसर कर देते, रिमाइंडर वुड हैव बीन प्लस 1, 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 101, रिमाइंडर विल बी माइनस 1, बट क्वेश्चन इज अबाउट 97 फैक्टोरियल। ओके, सो किसी भी एक को अप्रोच कर लो, किसी भी एक को यूज कर लो। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग 98 फैक्टोरियल, so this will be 97 factorial, let us say remainder is r in this case, multiplied by 98 divided by 101, so remainder will be 50, 97 factorial will give us remainder r, 98 देगा रिमाइंडर -3, ठीक है, -3 देगा, और इक्वल टू 50 आ रहा है हमारा वैल्यू। ठीक है, 50 आ रहा है, या फिर निगेटिव में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 50 हमारा -3 का मल्टीपल तो है नहीं, निगेटिव में कन्वर्ट कर दो, तो वी कैन राइट दिस एज 50 माइनस 101 विच विल बी -51, तो r into -3 r is equal to -51, and hence r will be equal to 17, remainder will come out to be 17। सेकंड अप्रोच हो सकता है, यूज दिस 99 फैक्टोरियल बाय 101। ठीक है, किसी को भी अप्रोच करो आंसर तो सेम ही आएगा, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, बट तुम्हारा कंफर्ट जोन कहां पे है वो देख लो, 97 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 99 डिवाइडेड बाय 101, सो क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी +1 आएगा। ओके, 98 डिवाइड बाय 101 -3 आएगा, 99 डिवाइड बाय 101 -2 आएगा नेगेटिव, और 97 फैक्टोरियल में तो r आएगा, तो r इंटू -3 इंटू -2 6r आ गया वैल्यू। अब +1 आएगा तो फ्रैक्शन तो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली 101 का मल्टीपल ऐड करना होगा, 101 k +1, और k इज इक्वल टू 1 पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, पुट जस्ट k इज इक्वल टू 1, तो 6r इज इक्वल टू 102, and hence r will be equal to 17, remainder will be equal to 17। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
23 factorial divided by 29, what will be our remainder? Pause the video, take your time, try to solve it yourself. क्या रिमाइंडर आएगा? ऑल वी नो इज 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 29, क्या रिमाइंडर देगा हमें? 3 कम है तो दिस विल 29 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 14, और 27 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 29 क्या रिमाइंडर देगा? दैट विल बी गिविंग अस रिमाइंडर +1. ठीक है, +1 रिमाइंडर देगा. क्लियर है? ओके ठीक है, चलो इसको यूज करते हैं 27 फैक्टोरियल को, बिकॉज यहां पे हम 4 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे. 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे 24, 25, 26, 27, तो सारे केस में नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा. ठीक, इसको यूज कर लेते हैं. तो 27 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 27 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 29 विल गिव अस रिमाइंडर इक्वल टू +1. और टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि रिमाइंडर हमारा फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि यहां पे हमें एक बड़ा वैल्यू मिलने वाला है, तो 29 का मल्टीपल +1 होगा. दिस विल बी आवर रिमाइंडर. 24 विल गिव अस रिमाइंडर -5, 25 -4, 26 -3, 27 -2, 23 फैक्टोरियल देगा r, अगर हमने r एज्यूम किया है अपना मल्टीपल. ठीक है, रिमाइंडर r इंटू -5 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -2, तो 5 4 जा 20 इंटू 6 120, और सारे माइनस प्लस हो जाएंगे बिकॉज 4 माइनस है, तो इवन नंबर ऑफ माइनसेस है, प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बी 120 r एंड दैट इज इक्वल टू 29k +1. बट अभी 120 r को फर्दर हम 29 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज 120 को डिवाइड करोगे 29 से, कितना रिमाइंडर देगा ये? 29 4 आर 116, 4 आ जाएगा, थोड़ा सिंपल वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस बिकम्स 4r इज इक्वल टू 29k +1. 4r इज इक्वल टू 29k +1. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 29? k का वैल्यू क्या होगा? डिवाइड कर दो 4 से, तो r विल इक्वल टू 29k +1 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, डिवाइडेड बाई 4. और इसीलिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इसको, क्योंकि 120 से डिवाइड करते हैं तो फिर चीजें टिपिकल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाता है अननेसेसरी. तो अभी क्योंकि 29 से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वाई हमने 29 से डिवाइड करके अपने नंबर को 120 की बजाय सिंपल कर लिया, 4 कर लिया. ओके, नाउ वी कैन राइट दिस एज 29k कैन बी रिटन एज 28k plus k +1, बिकॉज 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो r हमारा हो जाएगा 7k plus k +1 by 4. नाउ वी हैव टू मेक k +1 by 4 इंटीजर. ये तो इंटीजर होगा, पक्की बात है. और अगर इसको इंटीजर करना है तो k की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? k +1 को 4 का मल्टीपल होना है, यानी कि k शुड बी इक्वल टू 3, मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 3. तो r हमारा आ जाएगा 7 इंटू k यानी 7 इंटू 3 प्लस 4 by 4 यानी कि 21 + 1 22. आंसर विल बी कमिंग आउट टू बी 22 इन दिस केस. 22 हमारा आंसर हो जाएगा. क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके, क्या बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. So let us say next question is 39 factorial divided by 123. What will be our remainder? 39 factorial divided by 123, remainder क्या होगा? Now 123 definitely this is not a prime. और अगर होता भी ये प्राइम तब भी डायरेक्टली कैसे आंसर करते? ठीक है, बहरहाल दिस इज नॉट अ प्राइम, ये तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है. दिस इज 41 इंटू 3, 41 इंटू 3. यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? We know that 39 factorial divide by 41 क्या देगा हमें रिमाइंडर? This will be giving us remainder equal to +1. And to use this, we need to use Chinese remainder theorem. चाइनीज लोगों का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. सो ब्रेक द डिवाइजर इनटू 2 पार्ट्स 41 एंड 3. तो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा 39 फैक्टोरियल बाई 41 इज गिविंग एज रिमाइंडर +1. सेकंड पार्ट होगा 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3. क्या रिमाइंडर आएगा? अब ये भी सोचना है क्या? दिस विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज 3 तो कितने टाइम्स आएगा? 3 स्क्वायर होता, 3 क्यूब होता, 3 पावर 10 भी होता तो भी रिमाइंडर 0 ही आता. 39 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 विल डेफिनेटली गिव अस रिमाइंडर इक्वल टू 0. दोनों केसेस का रिमाइंडर पता चल गया. तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर इज 1, यानी कि जनरल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जनरल रिमाइंडर विल बी 41 का मल्टीपल +1, और अवर नंबर 39 फैक्टोरियल विल बी
सम मल्टीपल ऑफ 41 प्लस 1. ओके, ये मान लेते हैं इसको 41 इंटू ए प्लस 1. सिमिलरली 300 फैक्टोरियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 3b. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट सच वैल्यू विच इज सेटिस्फाइंग बोथ दीज कंडीशंस. सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे? डिवाइड बाई 3, तो b विल बी इक्वल टू 41a प्लस 1 बाई 3, और 41a हमारा क्या है? 39a प्लस 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 3. 39a बाई 3 विल बी 13a, तो 13a प्लस 2a प्लस 1 बाई 3. नाउ 2a प्लस 1 बाई 3 मस्ट बी इंटीजर. बस a इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, इंटीजर हो जाएगा. और क्या सोचना है इससे? a इक्वल टू 1 पुट कर दो. ठीक है, सो a इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 41 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 42. दैट विल बी 42. सो आंसर हमारा आ जाएगा 42 इन दिस केस. रिमाइंडर विल बी 42 ओनली. ओके, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो देख रहे होगे क्वेश्चंस कितने आसान बन गए हमारे लिए, कॉन्सेप्ट कितना आसान हो गया, सिंपल हो गया. दैट्स हाउ इट इज. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. सो 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 899, व्हाट विल बी आवर रिमाइंडर? 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 899, रिमाइंडर क्या होगा? नाउ अगेन 899 क्या ये एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? देखो 899 इज बेसिकली 900 माइनस 1. और 900 माइनस 1 क्यों लिखा? बिकॉज 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर ये बात ऑब्जर्व कर लोगे तो इजीली फैक्टर निकल आएंगे, अदरवाइज फिर फैक्टर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऑब्जर्व कर लोगे तो इजीली निकल आएगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1. एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 तो 1 लिखा है, 1 को स्क्वायर, 1 का क्यूब जो चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस कैन बी रिटन 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि दिस इज 30 माइनस 1 इंटू 30 प्लस 1. 30 माइनस 1 इंटू 30 प्लस 1, यानी कि 29 इंटू 31. Okay, so 899 is 29 into 31. So there are two parts now. चाइनीज रिमाइंडर सही करेंगे. 30 फैक्टोरियल बाई 29, क्या रिमाइंडर आएगा? एंड सेकंड पार्ट इज 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 31, क्या रिमाइंडर आएगा? तो 29 तो 30 फैक्टोरियल में इंक्लूडेड है, बिकॉज 30 फैक्टोरियल इंक्लूड्स 28 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 30. 29 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, रिमाइंडर विल बी 0. और 31 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू -1. -1 रिमाइंडर होगा, -1 होगा और 30 होगा. ठीक है, सो दोनों को सेटिस्फाई करना है. फर्स्ट केस से मेरे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? जनरल रिमाइंडर क्या होगा? दैट विल बी 29 का मल्टीपल, यानी 29 इंटू ए लेटर से. एंड सिमिलरली सेकंड केस से क्या मिलेगा? 31 का मल्टीपल -1, 31b -1 डिवाइड बाई 29. सो ए विल बी इक्वल टू 31b -1 डिवाइडेड बाई 29. एंड 31b कैन बी रिटन एज 29b plus 2b minus 1 divide by 29. So that will be b plus 2b minus 1 by 29, and this must be integer. 2b minus 1 by 29 must be integer. तो 2b minus 1 को सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 29 के बराबर कर दो, इक्वल 29 कर दो. तो अगर 2b minus 1 इक्वल 29 है, 2b will be 30 यानी b will be equal to 15. So b is equal to 15 पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b will be equal to 15. ओके, b इक्वल टू 15 पुट कर दोगे, क्या वैल्यू आ जाएगा? कहां पे पुट करेंगे? यहां पुट कर दो. b इज इक्वल टू 15, सो रिमाइंडर विल बी 31 इंटू 15 -1. 15 इंटू 30 450 प्लस 15 465 -1 464 विल बी अवर रिमाइंडर. रिमाइंडर विल बी 464. क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन. अब एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर लेते हैं. सो 100 फैक्टोरियल -99 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 101, व्हाट विल बी योर रिमाइंडर?
100 फैक्टोरियल माइनस 900 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 101, क्या रिमाइंडर होगा? सो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 101 क्या रिमाइंडर देता है? दिस इज गिविंग अस रिमाइंडर इक्वल टू -1, और 900 फैक्टोरियल देगा रिमाइंडर इक्वल टू +1, बट उसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इफेक्टिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? -1 माइनस +1, सो -2. -2 विल बी आवर रिमाइंडर, बट रिमाइंडर को नेगेटिव में तो लिखोगे नहीं, तो ऐड 101, सो फाइनल आंसर विल बी 99. Our remainder will be equal to 99 in this case. Okay, clear? Next question करते हैं. 20 factorial divided by 17 whole square का रिमाइंडर क्या होगा? 20 factorial divided by 17 square, what will be the remainder? Now if this was 20 factorial divided by 17, तब रिमाइंडर क्या होता? 17 एक प्राइम है, तो डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर क्या देता? रिमाइंडर वुड हैव बीन, बिकॉज 17 इज अ प्राइम एंड 20 हमारा क्या है? 17 से बड़ी वैल्यू है, तो रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर आता 0. ठीक है, रिमाइंडर आता 0. 17 - 1 बाय 2 मत कर देना, बिकॉज बड़ा है 20, छोटा नहीं है. ठीक है, 14 फैक्टर होता तो फिर डेफिनेटली उस केस में 8 आंसर होता, 8 रिमाइंडर होता हमारा, बट 20 फैक्टर है, दैट इज वाई रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि 17 तो इंक्लूडेड है इसमें, 17 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, इज दैट सो? ठीक है, क्लियर है? बट 17 स्क्वायर है यहाँ पे, 17 तो नहीं है, 17 स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है यहाँ पे? सो 20 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 × 2 × 3 × 4 and so on till 16 × 17 × 18 × 19 × 20. Basically this can be written as 17 factorial into 18 into 19 into 20. ठीक है, या फिर 16 फैक्टोरियल into 17 into 19 into 20. तो 17 को अगर हम कॉमन ले लें, पूरे में से कैंसिल कर लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 17 को कॉमन ले सकते हैं ऐसा. सो अगर हम 17 को कॉमन ले लें, इनसाइड द ब्रैकेट विल बी 20 फैक्टोरियल की बजाय क्या बचेगा? 16 फैक्टोरियल, 17 तो कॉमन आ गया, सो 16 फैक्टोरियल into 18 into 19 into 20, और डिनोमिनेटर में से भी एक 17 बाहर चला गया, कॉमन हो गया, सो डिवाइड बाय 17. अब हमारा क्वेश्चन है कि इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. 16 फैक्टोरियल into 18 into 19 into 20 डिवाइडेड बाय 17, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ओके, रिमाइंडर हमारा क्या होगा? क्या है, क्लियर है? एंड 16 फैक्टोरियल विल बी गिवन एज रिमाइंडर -1 जब डिवाइड करोगे 17 से, एज पर द विल्सन थ्योरम. 18 देगा हमें रिमाइंडर +1, 19 देगा +2, 20 देगा +3, सो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा -1 into 1 into 2 into 3, यानी कि -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा. सो रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी -6. अब चाहे तो -6 को लेके सॉल्व कर लो, या फिर इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दो. तो -6 अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है जब डिवाइड करो 17 से, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? -6 + 17, सो दिस विल बी इक्वल टू 17 into -6 + 17, तो 17 into 11, आंसर विल बी 187. 187. ओके, क्लियर है? 187 विल बी आवर आंसर. ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन को एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, और एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज 29 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 क्यूब, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 29 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 क्यूब, सो रिमाइंडर क्या होगा? 13 क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, और 29 फैक्टोरियल में 13 का पावर मैक्सिमम कितना आएगा? 29 फैक्टोरियल में 13 का मैक्सिमम पावर कितना आएगा? 29 फैक्टोरियल कंटेन्स 1, फ्रेश पेज पे करते हैं. Twenty-nine factorial contains 1 into 2 into 3 into 4 and so on till 13 multiplied by 14, 15, 16 till 25 into 26 into 27 into 28 into 29. So there are basically 2 multiples of 13, 13 and 26. So 2 multiples of 13 है, यानी कि this is divisible by 13 square. 13 square से अगर डिवाइड कर रहे होते 29 फैक्टोरियल को, तब तो फिर इजी था, रिमाइंडर हमारा आया था 0, बट डिवाइड हम कर रहे हैं 13 क्यूब से. 13 क्यूब से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 तो नहीं आएगा फिर,
बिकॉज 13 क्यूब का मल्टीपल तो है नहीं, तो डेफिनेटली हमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ तो रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, सो कैसे हम लिख सकते हैं इसको? दिस कैन बी रिटन एज, देखो अब ध्यान से समझना, वी कैन राइट 29 फैक्टोरियल एज 1 into 2 into 3 into 4 till 12 multiplied by 13 multiplied by 14, 15, 16 and so on till 25 multiplied by 26 into 27 into 28 into 29, कोई दिक्कत? and this is being divided by 13 cube. okay, now 13 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 13 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहां से 13 बाहर जाएगा, ये 26 है बाहर जाएगा, तो 2 एक अंदर रहेगा, उस 2 का ध्यान रखना है, तो 13 स्क्वायर इज कॉमन नाउ, सो नाउ दिस बिकम्स 12 फैक्टोरियल, दिस पार्ट इज 12 फैक्टोरियल। ओके, और इस सेकंड पार्ट में क्या आएगा, इस पे ही फोकस करो। ठीक है, बिकॉज इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल इंटू 13 तो बाहर चला गया, सो यहां तो 1 आ गया, इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 टिल 25 मल्टीप्लाइड बाई 13, वहां से ही बाहर चला गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 27 इंटू 28 इंटू 29, एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाई 13 नाउ, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। नाउ दिस स्टेप यू विल एंजॉय डेफिनेटली। देखो अब 14 को डिवाइड कर रहे हैं हम 13 से, क्या रिमाइंडर देगा हमें, सारे प्रोडक्ट है, दिस विल बी गिविंग एज रिमाइंडर 1, 15 2 देगा, 16 3 देगा, 17 4 देगा, और 25 देगा 12, तो क्या ये हमारा अगेन 12 फैक्टोरियल नहीं होगा? दिस विल आल्सो बी 12 फैक्टोरियल। सिमिलरली 27 हमें रिमाइंडर 1 देगा, 26 प्लस 1 है, 28 2 देगा, 29 देगा 3। ठीक है, तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे लिए बहुत प्यारी सी वैल्यू आ गई है, 13 स्क्वायर है बाहर, इनसाइड ब्रैकेट दिस इज 12 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 6। ठीक है, सो दिस डिवाइडेड बाई 13 क्या आएगा, रिमाइंडर। सो 12 फैक्टोरियल, व्हेन यू आर डिवाइडिंग 12 फैक्टोरियल बाई 13, रिमाइंडर विल बी -1, तो ये पार्ट -1 रिमाइंडर देगा। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 अगेन -1 रिमाइंडर आएगा, और 2 इंटू 6 क्या है, 12 है, तो 12 को डिवाइड करो 13 से, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 12 ही रखते हैं रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर रखते हैं, बिकॉज -1 इंटू -1 हमारा प्लस हो गया है। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो, -1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट फिर हमें अगेन पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इसको 12 ही रहने देते हैं। सो रिमाइंडर विल बी फाइनली 13 स्क्वायर, तो बाहर था इनसाइड द ब्रैकेट, दिस इज -1 इंटू 12, यानी कि +1 इंटू 12, रिमाइंडर इज 12 ओनली, 13 स्क्वायर इंटू 12, दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी आवर फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस इज 169 इंटू 12, फाइनल आंसर विल बी 12 9s are 108, 8 आ गया, 10 कैरी हो गया, 12 6 72 प्लस 10 82, 2 आ गया, 8 कैरी हो गया, 12 and 8 2028, दिस विल बी आवर फाइनल रिमाइंडर 2028, because we are dividing by 13 cube. okay, and definitely 13 cube होता है 2197, so this is less than that, तो रिमाइंडर हमारा 2028 ही होगा, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और अगर लास्ट 2 डिजिट्स वाला सेशन तुमने देखा होगा, तो वहां से तुम कंपेयर कर पा रहे हो इन चीजों को, वहां भी कुछ कुछ हमने ऐसा ही किया था, कुछ कुछ ऐसा ही किया था वहां पे, isn't it so? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, आई बिलीव इतना ही काफी है, मजा आएगा सेशन में, एंड मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, कितना कुछ सीखने को मिला। डू गिव योर फीडबैक, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।